flying up on the eagle wings, Father God. Whatever comes on our path, you are there, O Lord, and we are so grateful for that. Our hearts are filled with praises, praises for your name, our Lord, our defender, our fortress. O Lord, we want to thank you. Just want to thank you this morning as we come with you. Just want to thank you.
such a great mighty and so lead us not to worry, but still knows. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Announcement. कुछ सूचनाएं As already announced that Bible College is beginning next month. अगले महीने बाइबल कॉलेज शुरू है। So if you have not given your names, अगर आपने अपना नाम नहीं दिया हो so give it to Brother Gurman. तो गुरुन भाई को आपका नाम दे So दीजिए। Pastor Roshan will be teaching discipline of grace. पास्टर रोशन डिसिप्लिन ऑफ ग्रेस सिखाएंगे Brother Gurman will be teaching Old Testament historical books. और ब्रदर गुरुन पुराने नियम के हिस्टोरिकल बुक सिखाएंगे। So it will start immediately after our graduation Bible College graduation service. और ये ग्रेजुएशन सर्विस का जो बाइबल कॉलेज का ग्रेजुएशन सर्विस उसके बाद ही चालू होगा। So if you have never been to any graduation service in Andheri, अगर आप कभी ग्रेजुएशन सर्विस में नहीं गए हो अंधेरी में तो you can come there और आप वहाँ आ सकते हैं and you can encourage those who have taken Bible College. और आप वहाँ प्रोत्साहन कर सकते हैं जो बाइबल कॉलेज देखेंगे। So July 19 is the day. और जुलाई 19 तारीख है। So that Sunday there won't be any service over here. और उस रविवार को कोई सभा नहीं होगी यहाँ पे। So all are welcome to Andheri. सबका स्वागत है अंधेरी में। So we'll share more details in our group. जो भी सूचनाएं देंगे वो ग्रुप में शेयर करते रहेगा। Also, as you already aware, that pastor is in Baltimore और आपको पता है जैसे पास्टर बॉल्टीमोर में है for the convention. कन्वेंशन के लिए। So this week he'll be back. और ये सप्ताह वो वापस आएंगे। So you must have already seen a lot of messages. आपने बहुत सारे मैसेज देखे हैं ग्रुप में। So really there, it was a good time over there. बहुत ही अच्छा समय रहा यहाँ So पे। in case if you have missed, you can always watch it on YouTube. अगर आपने मिस किया तो आप हमेशा यूट्यूब पे देख सकते The हैं। link is shared in the group. ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया गया है। So yeah, the another announcement like yesterday was Krishna Das uncle and Kusum's wedding anniversary. और एक और सूचना है कृष्णदास अंकल और कुसुम आंटी का कल वेडिंग एनिवर्सरी था। So they have arranged some snacks. उन्होंने कुछ स्नैक्स लाए। So please wait after the service. सभा के बाद थोड़ा टाइम ठहरिए। And also on Tuesday is Anya's birthday. और ट्यूसडे को गुरुवार का नायका बर्थडे है। So you can wish her. आप उसे विश कर सकते हैं। So yeah, that's it for the announcement. यही सूचना के लिए So let's welcome Brother Rohit for the offering. रोहित भाई का स्वागत करते हैं ऑफरिंग के लिए। Hello, good morning, church. So, हम verses चालू करते हैं। Deuteronomy 24, verse 19. Deuteronomy 24, verse 19. When thou cuttest down thine harvest in thy field and hast forget a sheaf in the field, thou shalt not go again to fetch it. It shall be for the stranger, for the fatherless, and for the widow, that the Lord thy God may bless thee in all the work of thine hands. So, आज जो मेरा टॉपिक रहेगा ऑफरिंग मैसेज का टॉपिक ये है कि मैं इस पर शेयर करूँगा जेनरस फेथ। सो जब इजराइली को जब परमेश्वर ये लॉज दे रहा था, जिस टाइम पे बता रहा था कि किस तरीके से तुम लोग जब इजराइल प्रॉमिस लैंड में से जाओगे तो उस टाइम पे कुछ नियम दिया था परमेश्वर ने। उसमें से एक छोटा आज्ञा था उन लोगों के लिए, कमान था कि जब भी वो लोग खेत में जाके सिंचाई करते, जब वो हार्वेस्ट करते थे, उन लोगों को बोला गया था कि अगर कुछ चीज़ें गिर जाती है काटते वक्त तो कलेक्ट करते वक्त जाके फिर से जाके कलेक्ट मत करना, उसको रहने देना जैसा है वैसा, क्योंकि वो जो विडो थे, जो गरीब थे, उन लोग जाके वहाँ पे उठा सके। लाइक परमेश्वर का जो प्रोविजन था सभी के लिए अलग ही तरीके से था। वो एक बोलते ना प्रोविजन परमेश्वर ने इस तरीके से बनाया था कि हर एक लोगों को उसके हिसाब से मिल सके, सभी सेटिस्फाइड रहे। अगर गरीब है उसको जाके इधर जाके मांगना ना पड़े, राइट। अगर वो खेत में जाके जो पड़ा हुआ हार्वेस्ट जाके करके वो पिकअप करे, तो वही कमांडमेंट गॉड ने दिया था। एक जनरसिटी था कि आप जब करते हो तो उसे जाके रिपीट मत करना, उसको जाके उठाना मत, पूरा साफ मत करना, जो लोग नीड में वो उसे पिकअप करेंगे।
ये इजरायली को प्रैक्टिस करने के लिए बोला था परमेश्वर ने। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे रूट के किताब में बोआज के इसमें, राइट, जब बोआज अपना खेत का ये करता है उस टाइम पे रूट दूर जाके कलेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे बताया गया था 400 साल भी वो प्रैक्टिस करे तो जेनरोसिटी था। सो इसका मतलब ये था कि उन्हें हमें इस तरीके से इजरायली को भी परमेश्वर एक याद दिला रहा था कि हमें जब हमारे पास बहुत कुछ होगा तभी नहीं देना है हमें, करेक्ट। अगर मेरे पास कल है तभी तो मैं देता हूँ, इससे मैं परमेश्वर पे डिपेंडेंट रहता हूँ, परमेश्वर के प्रोविजन पे डिपेंडेंट रहता हूँ। और ये उन्हें भी एक रिमाइंडर था इजरायली के लिए कि हम उन लोग एक टाइम पे इजिप्ट में थे जहाँ उन्हें ऑपरेस किया गया था, जिधर उन्हें भी स्टाफ मतलब उन्हें भी खाना नहीं मिलता था। उन्हें एक रिमाइंडर था कि किस तरीके से लोगों को ख्याल रखना है। सेम तरीके से हमें भी एज अ बिलीवर हमें यीशु मसीह में है, ये हमें एक रिमाइंडर है कि अभी मैं जो हूँ मैं मेरे वजह से नहीं हूँ, है ना, पर यीशु मसीह के वजह से। यीशु मसीह अमीर था लेकिन वो मेरे लिए गरीब हुआ, राइट, हमारे लिए गरीब हुआ। 2 कोरिन्थियंस 8:9 में कि वो हमारे लिए गरीब हुआ, सब कुछ बेच के आया वो हमारे लिए हुआ। सो हमें भी एक रिमाइंडर है कि जब परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, जब परमेश्वर हमें देता है, तो ठीक है टाइट हम लोग देते हैं वो हम लोग थोड़ा बेहतर है, लेकिन टाइट के अलावा भी कुछ बेहतर चीज़ें होती हैं जो हमें करना है। और हमारे जो नीड रहता है आसपास के लोगों को समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जेनरस फेथ एक जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो उसमें मेरे को पहली बार तो मेरे को परमेश्वर की प्रोविजन पे ट्रस्ट करने सिखाता है। हम लोग देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने दिया है, राइट, हमें धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, रियली गॉड, आपने जिस तरीके से प्रोविजन हमें दिया है परमेश्वर, हम लोग को धन्यवाद देते हैं गॉड। जैसे कि वर्शिप में मैंने सॉन्ग सुना गाया कि हम लोग वर्शिप किए थे कि पूरे दिन से आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सब कुछ हमारे लाइफ में दे दिया। और गॉड हमें परमेश्वर हमारे आगे को खोलना परमेश्वर, हमारे आसपास जो लोग हैं उनके हम लोग नीड को समझे परमेश्वर, उनकी ज़रूरत को समझे परमेश्वर, और परमेश्वर हम लोग में हेल्प कर सके और आपके किंगडम का एक हिस्सा बन सके परमेश्वर। ये छोटी सी बात मैं इस मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। city stud. और सिटी स्टाइल का बहुत ही सुंदर ये वीडियो था, Like as we saw last Sunday जैसे पिछले रविवार को हमने देखा on
missionary Jim Elliot. हमने जिम एलियट की कहानी को सुना था। It was similar to his life, like even cricketer C.D. Studd was a celebrity. और सिटी स्टार ये महान क्रिकेटर थे और ये बहुत अच्छे सेलिब्रिटी थे। Imagine like in India, like for example, you are a cricketer तो भारत में सोचिए आप एक क्रिकेटर हो and you are playing for the country. और आप अपने देश के लिए खेल रहे हो, You are so much famous, आप बहुत ही जाने वाले हो and everyone will tell what's wrong with you, why are you taking that decision? और सोचिए कि लोग कह रहे हैं कि आप ये क्यों निर्णय ले रहे हो। And you hear many voices, don't give up your cricketing career. और आप अपना ये करियर क्यों छोड़ रहे हो। But when God touched him, जब परमेश्वर ने उन्हें छुआ, like nobody can stop that person. कोई भी उस व्यक्ति को नहीं रोक सकता। And same thing like C.D. Studd, उसी तरह से सिटी स्टार के साथ भी हुआ, he gave his life to Jesus. उन्होंने अपना जीवन मसीह को दिया। And as we heard him say और जैसे कि हमने सुना उनसे that we have only one life, कि हमारे पास एक जीवन है and what you did for Jesus, और आप यीशु मसीह के लिए क्या करते हो that will count. और वो रहेगा। So really that was a good life story on C.D. Studd. और उनकी ये अच्छी कहानी है And और even after है। so many years, और इतने सालों के बाद we भी still remember. हम उसे याद करते हैं। Like you can see, like even though he had everything in his life, उनके पास जीवन में सब कुछ था, he gave up everything. उन्होंने फिर भी दे दिया। Why? Because Jesus gave everything for us. और क्यों त्याग दिया? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ दिया है। So really it was a very encouraging. और प्रोत्साहन देने वाला वीडियो था। So today I am going to speak on Psalm 46. और वजन संहिता से मैं बात करूँगा 46 में। So everyone in their life has gone through a difficult time. और हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कठिन समय से गुजरते हैं। If there is anyone over here अगर यहाँ पर कोई है, who says that I have not gone through a difficult time in my life, अगर कोई कहे कि मैं अपने जीवन में कठिन परिस्थिति से नहीं गुजरा हूँ, is maybe is not actually telling the truth. और शायद ऐसा होगा कि वो सच नहीं बोल रहे हैं। Because we all go through some difficult times in our life. और हम कोई ना कोई यहाँ पर कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। It can be your health, और ये हो सकता है हमारी सेहत के साथ, it can be a relationship, और कोई एक संबंध हो सकता है, or it can be even your job, like suddenly you lost your job. या फिर कोई हमारा जॉब हो सकता है जो हमने खो दिया हो सकता है। We all go through difficult times. हम हर एक व्यक्ति जो है कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं। And nobody can say that I never went through difficult times. और कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं उस परिस्थिति से नहीं गुजरा हूँ। And maybe even you must have even spent sleepless night शायद से आपके आपकी रातें जो है बिना सोए निकाली होंगी, worrying about this problem, चिंता करते हुए शायद से, like even asking God, शायद से परमेश्वर से आप बातचीत करते हुए उसके उत्तर मांग रहे होंगे। oh God, where are you? आप कह रहे होंगे परमेश्वर आप कहाँ हो? Where are you in this difficult situation? इस कठिन परिस्थिति में आप कहाँ हो प्रभु? So yes, we all go through this situation. और हम इन परिस्थितियों से गुजरते हैं। Today we see अगर आज हम देखें that there is so much of problem, chaos happening, बहुत सारा गड़बड़ी हमें दिखाई देता है, but yet we can say पर फिर भी हम कह सकते that हैं everything around will change. और सब कुछ हमारे जो आसपास है वो बदलेगा। One thing that never changes पर एक चीज़ जो नहीं बदलेगी is the God who is within us. और परमेश्वर वो नहीं कभी बदलेगा। So let's open our Bibles and read from Psalm chapter 46. और भजन संहिता 46 से हम पढ़ेंगे। Psalm chapter 46, verse 1. पहली पंक्ति में So I'll take the first part. The first part is saying that God is our refuge. परमेश्वर मेरे छुपने का स्थान है। So as I already said, like we all go through a difficult situation. और जैसे हम परिस्थितियों से गुजरते हैं, So what do you do when you go through a difficult situation? और हम क्या करते हैं उस समय में जब हम उन परिस्थितियों से गुजरते हैं? Like there are only two options. वहाँ पे दो पर्याय होते हैं। Either you will run away from God, हम एक तो कर सकते हैं, हम परमेश्वर से दूर भाग सकते हैं,
can run to God. या फिर हम परमेश्वर की ओर भाग सकते हैं। But running away from God, परमेश्वर से दूर भागना, you can even get into addiction. शायद से हम किसी व्यसन में पड़ जा सकते हैं दूर जाने से। Some may even take up drinking alcohol, शायद से कोई शराब पीने लग जाए, or some may just be lonely, staying away from any other people. या फिर वो लोगों से दूर हो सकते हैं। So we see that there are only two options: either run to God or run away from God. आगे दो ही पर्याय होते हैं, परमेश्वर की ओर या परमेश्वर के विरुद्ध में हम जा But सकते हैं। what should we actually do? पर हमें क्या करना होता है? The Bible says बाइबल कहती है God is our refuge. परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। So we need to run towards God. हमें परमेश्वर की ओर दौड़ना है। What does refuge mean? और ये शरण स्थान, छुपने का स्थान क्या है? Like we can say the meaning of refuge is safety. और वहाँ पर हम कह सकते हैं हमारी सुरक्षितता है, Can say like it's a protection, और सुरक्षा प्रदान करता है, or you can say it is a shelter from danger. या फिर एक छत है जो हमें खतरे से बचाता है। Suppose there are two children playing outside, और सोचिए कि दो बच्चे बाहर खेल रहे हैं, and suddenly there is a like a thunderstorm, lightning. अचानक से वहाँ पे बिजली कड़क रही है, तूफान आ रहा है, So what they do? और वो क्या करेंगे? They run inside the house. वो अपने घर की ओर दौड़ लगाएंगे। Why they run inside the वो house? घर की ओर क्यों दौड़ेंगे? Because there is a like safety inside the house. वो इसलिए दौड़ेंगे क्योंकि वो जानते हैं वहाँ पे सुरक्षा है। They feel that they'll be safe inside that house. वो जानते हैं या समझते हैं कि वहाँ पे वो सेफ रहेंगे। But have you ever noticed like God did not stop that rain or the thunderstorm? परमेश्वर कभी भी उन तूफानों को या बारिश को रोकता नहीं है। So same thing in our life, like when there is a problem, और उसी तरह से हमारे जीवन में हम जब किसी परिस्थिति से गुजरते हैं, we have to run to God. हमें परमेश्वर की ओर दौड़ना है। So we see that yes, the problem will be there, हाँ, समस्याएं तो होंगी, but we know that we are safe in God's hand. पर हम जानते हैं कि हम सुरक्षित हैं परमेश्वर के हाथों में। Also in that same verse, और उसी पंक्तियों में it says that God is our strength. और वहाँ पर उसी पंक्ति में कहा जाता है परमेश्वर मेरा बल है। For example, like we try to do so many things in our life. हम बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में करने की कोशिश करते हैं, Sometimes we think like we can do things on our own. और कई बार सोचते हैं हमारे खुद के स्वयं के बल में हम करेंगे। Feel like we are intelligent, हम सोचते हैं हम बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, or maybe because of our experience या फिर हमारे अनुभव के कारण हम सोचते हैं that I can do things on my own. कि हम हमारे स्वयं के बल पर कर सकते हैं। But finally, you come to a stage in your life और पर एक स्थान पर ऐसे हमारे जीवन में आ जाते हैं हम लोग when you think like it's so much like difficult for me, कि हम सोचते हैं कि कितनी सारी कठिनाइयाँ हैं मेरे लिए, and you may even give up. और फिर हम उसे क्या छोड़ सकते हैं उस चीज़ों को। Like for example, take an example of a mobile phone. उदाहरण के लिए मोबाइल फोन लीजिए, What happens when it has reached just 2% of battery? सोचिए वो सिर्फ 2% बैटरी पर है, What do? You start, you connect a charger and charge it. तब हम क्या करते हैं, चार्जर से उसे जोड़ते हैं और वापस चार्ज करना शुरू करते हैं। Same thing like a charger is our God. और उसी तरह से हमारा जो चार्जर है वो हमारा परमेश्वर And है, we need to be connected to God in prayer. और हमें परमेश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा संपर्क में रहना है, And do things not by our own strength, but by His strength. पर हमारे बल से नहीं, पर परमेश्वर के बल के द्वारा हमें चीज़ें करनी है। And in the next verse, अगली पंक्ति कहती है, it says, therefore we will not fear, though the earth give away and the mountain falls into the heart of the sea. इस कारण हम कोई भी भय ना चाहे, पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में ढल जाए। This sounds like very good, like on a Sunday when we are in a church. और रविवार के दिन जब हम कलीसिया में होते हैं, But the actual test we go through is from Monday to Saturday, पर परीक्षा हमारी सोमवार से शनिवार तक होती है, where we face through so many difficult situations in our life. जहाँ पर हम बहुत सारी परिस्थितियों का सामना करते हैं। Like these are the days when we are tested. और ये दिनों में हमारी परीक्षा ली जाती है। Like, do we remain the same like from Monday to Saturday? क्या हम वैसे ही होते हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक?
maybe Sunday we are living a very holy life, a perfect life. रविवार के दिन शायद से हम पवित्र जीवन या फिर सिद्ध ऐसा जीवन जी The रहे हैं, real test is from Monday to Saturday. पर परीक्षा जो है हमारी सोमवार से लेकर शनिवार तक Our होती है। faith is really tested. हमारा विश्वास परखा जाता है। Like if you see Peter in the New Testament, हम जब पतरस को देखते हैं नए नियम में, like you see he's walking on the water. वो हम देखते हैं उसे पानी पर चलते हुए। So as long as he's looking at Jesus, जब तक वो यीशु मसीह को देख रहा था like he was okay and walking on water, और वो ठीक था, जब तक वो जैसे वो पानी पे चल रहा था, the moment he saw there's a big wave coming or the sound of the waves, और उसने जब उस तूफान की आवाज़ को और लहरों की आवाज़ को सुना, fear entered him और उस समय में जैसे भय उसके अंदर आ गया and he felt that he will drown. और उसे लगा कि वो अब डूब जाएगा, And he started asking Jesus for help. और उसने फिर वहाँ पर परमेश्वर से मदद मांगने की कोशिश की। Why it happened? क्यों हुआ? Because he shifted his focus क्योंकि उनका ध्यान जो है from Jesus, यीशु मसीह से, now his focus was on the problem. और उनका ध्यान जो है अब समस्याओं पे था। Same thing in our life too. उसी तरह से हमारे जीवन पर भी On Sunday maybe our focus is on Jesus. शायद से रविवार के दिन हमारा ध्यान यीशु मसीह पर होगा, But what about the remaining days? पर दूसरे दिनों के बारे में क्या? Where is our focus? हमारा ध्यान कहाँ है? Like is our focus on Jesus क्या हमारा ध्यान यीशु मसीह पर है or on our problems? या फिर हमारी समस्याओं पर है? Yes, we all go through problems. हम सभी लोग समस्याओं से गुजरते I'm हैं। not saying like we do not have to think about our problems. हमें उन समस्याओं के बारे में नहीं सोचना है, But let's not worry. पर चिंता न करते हुए But give our problems to God. परमेश्वर को हमारी समस्याओं को देना है। So in the next verse 4, और चौथी पंक्ति में कहा गया है, it says that वो कहता है, there is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. एक नदी है जिसका नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। So here I can say like this verse, और इस पंक्ति में like it's an image of peace. यहाँ पर शांति का प्रतीक है। Peace where there is so much disturbance around us. हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी परेशानियाँ हैं। I'll give you an example of a railway station. यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन का उदाहरण देते हैं। Like how is the platform very crowded? एक प्लेटफॉर्म बहुत ही भीड़ से भरा हुआ है There is so much noise of train honking. और बहुत सारे ट्रेन की आवाज़ें आ रही हैं। There are so many people talking loudly. बहुत सारे लोग बड़ी आवाज़ों में बातें कर रहे हैं। Some even maybe fighting. शायद से कोई लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। But in the middle of all this, पर इन सारी चीज़ों के बीच में भी, so much of noise, इन सारी आवाज़ों में भी you may see a child sleeping. एक बच्चे को हम शांति से सोते हुए देखते हैं। You must be thinking like, how can a child sleep? There is so much of noise. कि ऐसे बच्चे शांति से कैसे सो सकता है इतनी सारी आवाज़ में भी? Even today I am speaking so loudly. मैं आज कितनी जोर से बोल रहा हूँ, Even I can see a child here sleeping. फिर भी हम देख रहे हैं एक बच्चा सो रहा है। Why? क्यों? Because the child is not worried. क्योंकि वो जो बच्चा है वो किसी चीज़ की चिंता नहीं The करता। child knows that he or she is safe in mother's arms. वो जानता है कि वो अपने माँ के हाथों में सुरक्षित है। He is given, like the child has given all worries in God's hand, like in mother's hand. और उसने सब कुछ जैसे अपनी सारी चिंताएं जो है अपनी माँ के पास सौंप दी है। Same thing can happen, like even though we go through so much of problem, उसी तरह से हम भी बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरेंगे, we can still be at peace. फिर भी हम शांति में रह सकते This हैं। peace will come only when, और परमेश्वर जो है, this peace can come only when we surrender in God's hand. और ये परमेश्वर की शांति जो है हमारे पास तभी आ सकती है जब हम सौंप देते हैं So प्रभु। that's what happens when we surrender our lives to God. और वही होता है जब हम हमारा जीवन परमेश्वर को सौंप देते हैं। God's presence brings परमेश्वर peace. का उपस्थिति होती है वहाँ पर। Then we look at the verse 5. पांचवी पंक्ति में हम देखते हैं, It says that God is within her. She will not fail. God will help her at break of the day. परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वहाँ कभी टलेगा, टालने का नहीं, फटने की परमेश्वर उसकी सहायता करता है।
Like as I already said about like sometimes we go through sleepless night when we go through a problem. कई बार जो है हम बिना सोए अपनी रातों को बिताते हैं। Or sometimes during the problem, the night may seem so long. ऐसा लगता है वो रात इतनी लंबी दिखाई देती है। Like it will be like when it will be morning, we ask. और हम सोचते हैं कि कब सुबह होगी। Yes, we all go through this difficult time. हाँ, हम उन परिस्थितियों से गुजरते हैं। But we must always remember one thing. पर हमें हमेशा एक बात को याद रखना है। Like sometimes this silence, कई बार ये जो शांति है, this silence from God, ये शांति ये जो आवाज न आना परमेश्वर की ओर से, that means God is working behind the scenes. परमेश्वर इसके पीछे कार्य कर रहा है। And God always works silently. और परमेश्वर हमेशा उस शांत आवाज में कार्य करता रहता Now है। the question is like, are we ready to be patient? पर प्रश्न ये है, क्या हम धीरजमंद हैं उस आवाज को सुनने के लिए, Or we try to do things on our own when we do not hear from God? या फिर हम वो सब कुछ अपने बल पे करना चाहते हैं परमेश्वर की आवाज सुने बिना। So today, like even if you are going through any difficult situation, आज अगर आप किसी परिस्थितियों से गुजर भी रहे होंगे, like wait upon God, परमेश्वर पर थामे रखिए, because God has a plan for each one of us, क्योंकि परमेश्वर की योजना है हर एक के लिए, and He is working silently. और वो उसमें के पीछे वहाँ पे कार्य कर रहा है। The question is, are you ready to wait upon God? प्रश्न ये है, क्या हम धीरजमंद हैं उस पर रुकने के लिए। Then we will look at verse 6. छठी पंक्ति में हम देखते हैं, It says that nations are in uproar, kingdoms fall. He lifts his voice, the earth melts. जाति जाति के लोग जल उठे और राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वो बोल उठा और पृथ्वी पिछला गई। Like today when we watch the news, today when we are watching news, और आज जब हम समाचार देखते हैं, like only we get received that is fear. आज हम देखते हैं कि सिर्फ डर आया है। Like recently they were interviewing some people on the platform. और लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा था वहाँ पर। So one lady said, "I am even scared to travel in a local train now." और एक स्त्री कह रही थी, मुझे डर लगता है लोकल ट्रेन में जाने के लिए, Because few days back क्योंकि कुछ दिन पहले there was an argument in train. कुछ बहस हो गई थी ट्रेन में, So one man took knife and killed another person और एक व्यक्ति ने चाकू लिया और दूसरे आदमी को मार डाला, just because of a very simple reason. कुछ शुल्क बातचीत के कारण, It was just because of rainwater which was coming inside. सिर्फ बारिश का पानी आने की वजह से उनके बीच में बातचीत हो रही So थी। today in news we get only that we see that is fear. और आज जब हम समाचार में देखते हैं तो केवल डर दिखाई देता है। It can be like anything, like even today people are scared that what of the wars happening. और लोग भयभीत है जो लड़ाइयाँ हो रही है देशों में। So we all we receive that is fear. और सिर्फ हमें क्या मिलता है तो भय मिलता है। Let's remember तो याद रखिए, that God is bigger than any problem, परमेश्वर बड़ा है हमारी समस्याओं से, and He's sitting on the throne. और वो सिंहासन पर बैठा हुआ है। Like for Him it doesn't matter उनके लिए कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, because He never changes. क्योंकि वो कभी बदलते नहीं हैं। He never changes as per the situation वो going on. परिस्थितियों के अनुसार बदलते नहीं हैं। The problem may be too big for us, शायद से समस्याएं हमारे लिए बड़ी होंगी, but it is never too big for our God. पर परमेश्वर के लिए वो कभी बड़ी नहीं होती है। And in verse 7, 7वीं पंक्ति में कहा है, it says, वो कहते हैं, "The Lord Almighty is with us, the God of Jacob is our fortress." सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Like just imagine सोचिए, like a father and a child walking on the street, पिता और पुत्र जो है इस रास्ते पे चल रहे हैं, and suddenly some animal comes. और अचानक से एक प्राणी आ जाता है, जानवर आता है। So what does the child do? तब वो क्या करता है, बच्चा क्या करता है? The child does not leave father's hand and run away, वो बच्चा अपने पिता का हाथ छोड़कर भागता नहीं है, but rather holds tightly to father's पर hand. अपने पिता का हाथ जोर से थामे रखता है। Why? Because the child
child trusts his father. क्यों? क्योंकि वो बच्चा अपने पिता पर पूरा भरोसा करता है। He knows that his father is there. वो जानता है उसका पिता वहाँ पर है। So same thing in our life too. उसी तरह से हमारे जीवन में Like भी, as the verse says, जैसे कि पंक्ति कहती है, the Lord Almighty is with us. प्रभु परमेश्वर हमारे संग है। Same way like when problem comes, जब उसी तरह से जब समस्याएं आती है, let's not run away, हमें दौड़ना नहीं है, because we should always remember क्योंकि हमें हमेशा याद रखना है that our Lord God is beside us. कि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है। The Bible says बाइबल कहती है, He has given us a promise हाँ, उन्होंने हमें वायदे दिए हैं, that He will never leave us nor forsake वो us. हमें कभी भी छोड़ेंगे नहीं और कभी त्यागेंगे नहीं। And in 9th verse, और 9वीं पंक्ति कहती है, it says, वो कहता है, He makes wars cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shields with fire. आप इस पंक्तियों को पढ़ सकते हैं। So here we see यहाँ पर हम देखते हैं, that even though there is a very difficult situation, अगर हमारी परिस्थितियाँ बहुत ही खराब हो, like God, I said, is working silently. प्रभु परमेश्वर कार्य कर रहा है, And when we reach the end of the problem, और जब हम उस समस्या के अंत में पहुंच जाते हैं, or when the problem has been solved, और वो समस्या जब सुलझ जाती है, you realize like you got so much peace after that. और तब हम जान पाते हैं हमें कितनी शांति मिलती है उसके बाद। Yes, sometimes problem comes in our life, हाँ, समस्याएं आती हैं हमारे जीवन में, but it strengthens us. पर वो हमें बलवंत करती है। It strengthens those who wait upon God, वो उन्हें बलवंत करती है जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, who run towards God. जो परमेश्वर की ओर दौड़ते हैं। So God brings peace. परमेश्वर शांति ले आता है। All we need to do is wait upon God. सिर्फ हमें ये करना है कि परमेश्वर की बाट जोते रहना और उस पर थामे रहना। And verse 10, 10वीं पंक्ति कहती है, the first part पहला भाग कहता है, of the verse says, "Be still." चुप हो जाओ। Like imagine just take a bottle of water सोचिए एक पानी की बोतल ले रहे हैं, and just put some mud inside it उसके अंदर मिट्टी डाल दीजिए and shake that bottle. और उसे हिलाइए, Like when the bottle becomes muddy, और तब वो पानी जब मिट्टी वाला हो जाएगा, like when you shake the bottle, जब हम उसे हिलाते हैं, so you cannot see through that bottle. उसके उस बॉटल के हम पार देख नहीं पाते हैं, But keep the bottle for some time, पर उस बॉटल को स्थिर रखिए कुछ क्षणों के लिए, the mud will settle down. मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। So this shaking you can compare it like our worries. और ये जो मिट्टी का जो तुलना है हम लोग हमारी चिंताओं से कर Like सकते there हैं। is so much worries around happening. जब बहुत सारी चिंताएं होती है हमारे इर्द गिर्द, But God says, "Be still. पर परमेश्वर कह रहा है चुप हो जाओ, Do not worry. चिंता न करो, Give your worries to me." परमेश्वर को अपनी चिंताएं दो। So same thing, like we need to give all our worries to God. उसी तरह से परमेश्वर को हमें सारी चिंताएं देनी है। And finally, the next part, और the आखिर verse, में the same verse, verse 10, उसी second part. पंक्ति में भाग It says that I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी पर मैं महान हूँ। So finally, we see आखिर में हम देखते हैं what does God want. परमेश्वर क्या चाहते हैं। God wants us to exalt His name. परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके नाम को ऊंचा उठाएं। He wants like us to give Him the glory. वो चाहते हैं हम उसे महिमा दें। Yes, today we go through very difficult situations. शायद से हम बहुत सारी खराब परिस्थितियों से गुजरे होंगे, Whether it's a marriage, शायद वैवाहिक a जीवन, financial problem, हमारी आर्थिक समस्याएं, or it can be even any problem in our life. और कोई भी समस्याएं हो सकती है हमारे जीवन में। Let's always remember याद रखिए that God is there in that problem. परमेश्वर उस समस्याओं के बीच में है। So, whatever the storm is going on outside or inside your life, चाहे कोई भी तूफान क्यों ना हो, अंदर हो या बाहर हो, just remember there is a Savior inside of you. तो याद रखिए कि वो हमारा उद्धार करता उसके बीच में है। Yes, the world is today shaking, हाँ, ये संसार तो पूरी तरह से हिल रहा है, but as we just heard, जैसे हमने सुना, be still.
चुप रहो, Be still. चुप रहो, Because our foundation, क्योंकि हमारी नींव जो है, why it is secure? क्यों वो स्थिर है? Because our foundation is on Jesus Christ. तो क्योंकि हमारी नींव जो है यीशु मसीह पर है। And as I started my with the first verse in the Bible, जैसे sorry, मैंने 46th chapter, और इस अध्याय से जब मैंने शुरू किया, it says that God is our refuge. परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। So let God be our refuge इसलिए प्रभु को हमारा शरण स्थान बनने दो, in any situation today. कोई भी परिस्थितियों में आज है। And as we also saw और जैसे कि हमने देखा, in the cricketer C.D. Studd's life too, सीडी स्टड के जीवन में भी हमने देखा, that everything in this world इस पूरे संसार में will pass away. सब कुछ ढह जाएगा, But what we do for Jesus पर यीशु मसीह के लिए जो भी हम करेंगे, will always remain forever. वो हमेशा के लिए रह जाएगा। Amen. आमीन। Let's pray. प्रार्थना करते हैं। Father God, we want to thank you for being our refuge and our strength, O Lord. हाँ परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे शरण स्थान हैं। Help us, O Lord, to always trust you, O Lord, हमेशा मदद करना प्रभु के हमें आप पर विश्वास करने के लिए and to always walk in your ways, O Lord. और आपके मार्ग पर चलने के लिए। We ask you, O Lord, today हम प्रभु आपसे मांगते हैं to strengthen our faith, O Lord. हमारे विश्वास को बढ़ाना। Let your presence go, O Lord, आपकी उपस्थिति आगे जाने वाला करो, wherever we go, O Lord. जहाँ पे भी हम जाएं। Lord, we pray for every member in this church, O Lord, हम इस कलीसिया के हर सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं and also those who are not here right now. और जो भी अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, We pray, O Lord, हम प्रार्थना करते हैं that whatever problem or difficult situation they are going through in their life, और जो भी चीज़ों से या परिस्थितियों से वो गुजर रहे होंगे, help them to know, O Lord, और सहायता मदद करना प्रभु। that you are their strength, O Lord. आप उनके बल हो, You are their refuge, O Lord. आप उनके छुपने का स्थान हैं। Once again, Lord, we want to thank you, Lord, for this life, O Lord. धन्यवाद प्रभु इस जीवन के लिए। Thank you, Lord, for saving us, O Lord. धन्यवाद प्रभु हमें उद्धार में बचाने के Give us a beautiful week ahead, O Lord. और सुंदर सप्ताह बता रहे हैं प्रभु। In Jesus' most precious यीशु name. मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। I'll be
ये प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हेलिया अजीब परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा है परमेश्वर, आप याकूब के परमेश्वर है और आप हमारे चुपने का स्थान है परमेश्वर, आप हमारे शरण स्थान है परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, आप में हमारी सुरक्षा है और हम अनंत काल के लिए प्रभु आप में हम सुरक्षित है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस संदेश के द्वारा आपने हमें प्रोत्साहन दिया, आपके दास के द्वारा आपने हमें प्रोत्साहन दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पूरे हफ्ते में प्रभु इस वचन के द्वारा आप हमें अगुवाई करें, याद दिलाई कि प्रभु कहीं पर जाए लेकिन प्रभु आप हमारे साथ हैं, आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आप हमें सुरक्षा देते हैं और प्रभु हमें हमेशा याद रहने के लिए प्रभु ये हमें आपके अनुभव और प्रभु सामर्थ्य जैसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, इसके लिए आप आपके हाथों में सौंपते हैं, पासवान को और टीम को और सभी को प्रभु, यहाँ पर आए तमाम लोगों को आपके हाथों में सौंपते, इसके लिए आपके हर एक फैमिलीज को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। धन्यवाद देते सभी को इस बदलते वातावरण में संभालना, सहायता करना परमेश्वर, हर एक प्रभु यीशु मसीह उनके कार्य में, हर एक जिम्मेदारियों में परमेश्वर ने आप प्रभु अगुवाई करना, इसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, आने वाला पूरा हफ्ता आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम